morning students. Today we are going to learn is about the human circulatory system. You know very well. Human is a multicellular organ. It means the multicellular organ, the body structure of multicellular organ is made by the more than one cell. It's called the multicellular organ. You know very well the multi-organ need the regular supply of the food and the oxygen and etc. And this function is done by is performed by the circulatory system, and another name of circulatory system is the transport system. We see in human being the circulatory system is consists of three circulatory organs. For example, heart. Second thing is the blood vessels, and third thing is the circulatory medium. You know very well the heart. Heart is work as the pumping organ and is a muscular organ. Second thing is the blood vessels. We know there are the two types of blood vessels, vein and artery. And third is the circulatory medium, blood and plasma, blood and lymph. They both are work as a circulatory media. You know very well the blood is a connective tissue. In previous video I told you about the composition of blood, but I repeat, the blood is a connective tissue, and blood has the solid particles of blood is known as the blood corpus, and liquid part is known as the plasma. You know very well there are the three types of blood corpus: RBC, WBC and platelet. RBC, it contains the hemoglobin and it carry the oxygen from the blood and distribute the another part of the body. You know very well. Vein and artery. The first question is arise the differentiation between the vein and artery. You know very well कि artery it carry the oxygenated blood through our lungs from the lungs to our body. Oxygenated means the pure blood. It contains the high percentage of oxygen, and their wall is thick, and their wall is elastic, and valves are the absent, and that's why it is called the distributing vessels, because it carry the blood, pure blood, to the other body parts from the lungs. So it is called the distributing vessels. Second thing is the veins. Vein, it is called the impure, it carries the impure blood, also called the carbon dioxide rich blood, and their vessels is the thin vessels, and the valve are present. It's called the collecting vessels. You know, if you see the artery and vein, they both are the blood vessels, but capillary is found the conjunction of the artery and vein in the cell structure. First we are talking about the heart. You know very well the structure of heart. Our human body, in our human body there are the four chamber heart. कि human body के अंदर जो heart पाया जाता है वो four chamber होता है. यहाँ पर if we recall that the venous heart is found in the fish या fish, कि fish के अंदर venous heart पाया जाता है. It means उसके heart में दो chamber heart होता है, atrium and ventricle. upper part को हम atrium बोलते हैं, lower part को हम ventricle बोलते हैं. यहाँ पर अगर हम amphibians के पास जाते हैं, amphibians के अंदर three chamber heart होता है, दो atrium होते हैं, auricles होते हैं और नीचे ventricles होता है. अगर हम मैमल्स या रेप्टाइल्स की बात करते हैं, बर्ड्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर फोर चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है. फोर चैम्बर हार्ट का मतलब है कि हार्ट में फोर चैम्बर है. अपर चैम्बर्स को एट्रियम या सिंगुलर हम जिसको ऑरिकल कहते हैं, लोअर पार्ट को हम वेंट्रिकल बोलते हैं. यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, उसके हार्ट के अंदर. सेकेंड थिंग है कि जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट का जो साइज है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. एक मस्कुलर ऑर्गन है. इट इज अ बिग एज द फीस्ट. ये हमारी फीस्ट के बराबर बड़ा होता है, और फोर
ना केवल फूड और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, इसके अलावा जो सॉल्ट है या फिर नाइट्रोजन वेस्ट है उसको वहाँ से लेता भी है और उसको बॉडी के बाहर उसको फेंक देता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये ब्लड के थ्रू ही होता है। ब्लड यहाँ पे एज सर्कुलेटरी मीडिया वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करने के लिए हमें हार्ट की रिक्वायरमेंट होती है। हार्ट के अंदर अगर हम बात करें कि इसके मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है, क्या इसकी डायरेक्शन होती है, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मैकेनिज्म ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर हम देखते हैं कि द प्योर ब्लड, I said pure blood, the means of pure blood, it means the oxygen rich blood, यानी oxygenated blood. It carry the oxygenated blood from the lungs to the left auricle. After that the blood is goes to the left auricle से blood left ventricles में जाता है। आप यहाँ पे एक बात देख रहे हैं कि when left auricle is contract is relax, कि अगर लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स करता है तो जो ब्लड है वो लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। ये प्योर ब्लड है क्योंकि लंग्स से आया है। आफ्टर देन लेफ्ट ऑरिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने से सारा का सारा ब्लड जो प्योर ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये जो ब्लड है प्योर ब्लड है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये ऑर्गन से टिश्यू से सेल में जाता है और सेल में जो हम बात करते हैं कि सेल में जो ऑक्सीजन है जो ब्लड के साथ जुड़ा हुआ है उसके हीमोग्लोबिन के साथ, उस ऑक्सीजन का यूज हम रेस्पिरेशन में कर लेते हैं और वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड के साथ जुड़ जाता है और इस तरह से हम देखते हैं कि अब जो ब्लड है जो सेल के अंदर से निकल रहा है उसे गुजर रहा है कि सेल में से जाने के बाद जो ब्लड है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है। इस तरह से अब जो ब्लड है ब्लड आपका इम्प्योर हो गया यानी डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये जो इम्प्योर ब्लड है ये प्योर ब्लड फर्दर राइट ऑरिकल में जाता है। राइट ऑरिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। राइट वेंट्रिकल्स से कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद यही ब्लड लंग्स में भेज दिया जाता है क्योंकि वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेलेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाता है तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर इनहेलेशन द्वारा ले लिया जाता है। तो इससे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो आपका लंग्स में होता है। हार्ट का यहाँ पर सिर्फ एक काम है, वो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर। यहाँ पर चूंकि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर है और हमारे हार्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, इसलिए उसको जो एक सिंगल ऑर्गन है हार्ट जो हमारे बर्थ से लेके हमारी डेथ तक वो कंटिन्यूअसली पंपिंग करता रहता है नॉन स्टॉप। कि अगर हार्ट पंप करना बंद कर दे तो डेथ हो जाती है। यानी ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे जन्म के साथ से हमारे मृत्यु तक कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है, चाहे हम सो रहे हो चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली पंपिंग कर रहा है। इस पंपिंग को हम हार्ट बीट के थ्रू आप इसको महसूस कर सकते हैं। और जो हमारा हार्ट है वो मस्कुलर है, इसके अंदर काफ़ी इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखें कि इस तरह से इसमें सेपरेशन किया हुआ है राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में, या फिर हम कह सकते हैं राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, कि कभी भी ऑक्सीजनेटेड ये वाला जो पार्ट है हम कह सकते हैं कि इस पार्ट में प्योर ब्लड आता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और इस पार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है। तो यहाँ पर इस तरह का सेपरेशन देखने को मिलता है हार्ट में कि कभी भी प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता। आप कभी देखें कि कभी कभी हार्ट के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन बेबीज के अंदर यहाँ पर जो सेपरेशन है उस सेपरेशन के अंदर कहीं होल देखने को मिल जाता है, छेद हो जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर कहते हैं कि दिल में छेद है, हार्ट में छेद है।
तो उस तरह से क्या होता है कि जो प्योर ब्लड है और प्योर ब्लड है वो मिक्सिंग हो जाता है। तो इस तरह से जो बच्चा है, बच्चे का जो बॉडी है वो ब्लू कलर की हो जाती है, उस तरह के बच्चे को ब्लू बेबीज बोलते हैं। और इस तरह का इसका एक ही इसका इलाज होता है कि ऑपरेशन के द्वारा हार्ट में वापस जहाँ पे होल होता है उस होल को वापस बंद कर दिया जाता है, जिस तरह से प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिक्स होने से बच सके। और दैट्स फॉर ऑल टुडे। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे